everyone, online classes, class 8th, subject science, chapter 8, part 2, size of cell, कोशिका का size. The size of cell in living organism might be as small as a million of a meter, micrometers or micron, or might be as large as a few centimeters. However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. They need to be enlarged or magnified by a microscope. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. The largest cell, measuring 170 mm into 130 mm, is the egg of an ऑर्चिस. सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी, परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं एवं नग्न आँखों से दिखाई नहीं देती. उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है. सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है. सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 mm इंटू 130 mm होता है. The size of the cell has no relation with the size of the body of the animal or plant. It is not necessary that the cell in the elephant be much bigger than those in a rat. The size of the cell is related to its function. For example, the nerve cell both in the elephant and rat are long and branched. They perform the some function that of transferring messages. किसी कोशिका का साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता. ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी होंगी. कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से है. उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती हैं. यह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना एवं प्रकार. You have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7th about the digestive organ, which together constitute the digestive system. Each organ in the system perform different functions such as digestion, assimilation and absorption. Similarly, different organs of a plant perform specific specialized function. For example, root help in the absorption of water and minerals. Leaves, as you have learned in class 7, are responsible for synthesis of food. आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं. क्लास 7th में मैं पाचन अंगों के विषय में आप पढ़ चुके हैं, जो समृद्ध रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं. किसी तंत्र के प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण. इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार करते हैं. उदाहरण के लिए जड़, जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है. आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि पत्तियों भोजन की संश्लेषण का कार्य करती हैं. Each organ in further made up of smaller part called tissue. A tissue is a group of similar cell performing a specific function. प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे ऊतक कहते हैं. ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो विशिष्ट प्रकार कार्य करता है. पहली realized that an organ is made up of tissue which in turn are made up of cell. The cell in a living organism in the basic structural unit. पहली को समझ में आ गया कि अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं. सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है. पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कोशिका का भाग सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली. द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियस.
the cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane are closed called the plasma membrane. The membrane separated cell from one another and also the cell from the surrounding medium. The plasma membrane is porous and allow the movement of substance of material both inward and outward. कोशिका का मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका द्रव एवं कोशिका केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सारंध होती है तथा क्या होती है, विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. The central dense round body in the center is called the nucleus. The jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी और गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। You have learned that the cell membrane gives shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer thin layer in cell of plants called cell wall. The additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. Plants cell need protection against variation in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. They are exposed to their variation because they control move. Cell can to observed in the leaf peel of Tradescantia elodie or rohe. You can prepare a slide as in the case on onion. पहली आस बुझो if he can also observe animal cells. हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका के आकार प्रदान करती है। पौधे में कोशिका झिल्ली की अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली के आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधे की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित हैं क्योंकि वह चल नहीं सकते। कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्रेडेस्केसिया एलोडिया अथवा रोइयो की पत्तियों को झिल्ली में किया जा सकता है। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी। अब पहेली ने पूजो से पूछा कि वह जंतु कोशिका कभी प्रेक्षण कर सकता है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव। It is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. Various other components or organelles of cell are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. You will learn about them in later classes. कोशिका द्रव यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। यह एक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम इत्यादि। आप इन विषय को अगली कक्षाओं में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस केंद्रक। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. इट इज जनरली spherical and located in the center of the cell. It can be studied and seen easily with the help of a microscope. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called the nucleus membrane. This membrane is also porous and allow the movement of material between the cytoplasm and the inside of the nucleus, which with a microscope of higher magnification we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called the nucleus. In addition, nucleus contain thread-like structure called chromosomes. They carry genes and help in
inheritance or transfer of characteristic from the parent to the offspring. The chromosome can be seen only when the cell divides. सजीव कोशिका का वह एक महत्वपूर्ण संगठक है जो सामान्यतः वह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। यह सरलतापूर्वक अवरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग कार्य करता है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रकवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सारंध होती है जो तथा कोशिका द्रव एवं कोशिका के बीच पदार्थों का आवागमन का नियंत्रण करती है। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called the nucleus. In addition, cells contain thread-like structures called chromosomes that carry genes and help in inheritance of transfer of character from the parents to the offspring. The chromosome can be seen only when the cell divides. उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हम केंद्रक को एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियस कहते हैं। इसका अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक है अथवा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी से स्थापित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। न्यूक्लियस इन एडिशन to its role in inheritance act as control center of the activities of the cell. The entire content of a living cell is now as protoplasm. It includes the cytoplasm and the nucleus. Protoplasm is called the living substance of the cell. वंशानुगत अथवा अनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका का क्रियाकलाप का ही नियंत्रण करते हैं। सजीव कोशिका के समग्र संगठक का जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, जिसका कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? It is called vacuole. It could be single and big as in an onion cell. Chick cells have smaller vacuoles. Large vacuoles are common in plant cell. Vacuoles in animal cell are much smaller. प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का अपेक्षा करते समय क्या आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं को पर ध्यान दिया है? इसे रिक्तिका कहते हैं। यह एक बड़ी हो सकती है जिसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती हैं। गल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएँ आमतौर पर पौधे की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतुओं में ये रिक्तिकाएँ बहुत छोटी होती हैं। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of Tradescacia leaf. They are secreted in the cytoplasm of the leaf cell. These are called plastid. They are of different colors. Some of them contain green pigment called chlorophyll. Green colored plastid are chloroplast. They provide green color to the leaves. You might recall that chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis. ट्रेडेस्केसिया पत्ती की कोशिकाओं में अपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं होती हैं। वह पत्ती की कोशिका द्रव में छितरी रहती है। इन्हें प्लास्टिड कहते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं। इनमें से कुछ के हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपको यह याद होगा कि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कंपेरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना। इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटीज 8.3 एंड 8.4 you should be able to compare plant and animal cell. Observe the plant and animal cell carefully in figure 8.7 AB. Let's tabulate the similarities and distinguishing features of
plant and animal cell, only a new features are mounted. You might added more in table 8.1. यदि आप पिछले 8.3 एवं 8.4 को याद करें तो उसके आधार पर आप पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की संरचना की तुलना कर सकते हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक परीक्षण कर सकते हैं। आइए पादप एवं जंतु कोशिका की समानताओं अथवा अंतर की सूचीबद्ध करें। श्रेणी 8.1 में केवल कुछ ही लक्षणों को उल्लेख किया गया है, आप और लक्षणों को उल्लेख कर सकते हैं। थैंक यू।